Alright guys, welcome to the top 5 of this week and let me tell you, from प्यास to कलाकार, बहुत सारी चीजें जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता वो हम आपके लिए लेकर आते हैं. If you like this series, please press subscribe and share the video. तो करना. And here there is a lesson. Yes, never talk big and never talk wrong. मैडम जी जिनका धनुष बाण नहीं चला, कोई बात नहीं, पिक्चर भी नहीं चली. So sad. मजा नहीं आ रहा. Thing is, and that is so sad. If you talk about the movie, people will raise question on your patriotism. That is so weird. अरे मैं देशभक्त हूँ, अपने देश के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मूवी अच्छी नहीं बनी है तो क्या मैं जबरदस्ती बोलूँगी मूवी अच्छी बनी है? नहीं सच्ची बेकार मूवी बनाई है ये. Flop. I mean, लोग कह रहे हैं बस ऊपर से बनाई, कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है. Seriously, it was a bad movie. People are not liking it at all. बिल्कुल flop. चीजें कैसे शुरू हुई ये देखते हैं. Yeah, with Tejas there is one more movie, 12th Fail released. Vikrant Massey, he is the lead actor of 12th Fail. इस बंदे को एक बार इन्होंने कॉकरोच कहा था और कहा लाओ मेरी चप्पल. Yeah, that was the Instagram post. मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा. That's why I told you, never talk big things. Now his movie is doing better than Kangana Ranaut's movie. पंगे मत लो. So always be careful with your words. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? After the release of her movie, she did this appeal. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर मल्टीप्लेक्स की ऑडियंसेस से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीरजा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी. नहीं. और इस अपील को लेकर लोगों ने बहुत ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि कभी इन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को ना देखने की अपील भी की थी. There are artists and there are bhands. There is an Indian film industry and there is Bollywood. India rejects Bollywood. Most ridiculous, worst Bollywood itself copied and stolen from Hollywood. Please reject this derogatory word. Hashtag India rejects Bollywood. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? So this is all going on and here is the lesson guys. Always use your words carefully. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है. And now let's talk about inflation. Nobody is talking about it. No one at all. मतलब पत्रकार हो या and we are against any organization that tries to inflict war on you. कलाकार हो. Our film movie Tejas that is coming, it is about. क्या बोले मैं समझा नहीं. इजराइल पे अपनी राय रख देंगे लेकिन प्यास पर नहीं रख रहे हैं because media is there to raise question for the common people. Yes. अरे जनता की आवाज बनो, अपने देश के लोगों की बात करो. प्याज के रेट सुने. प्याज के दामों ने एक बार फिर जनता को रुला दिया है. एक बार फिर प्याज के दाम उछाल पर हैं. प्याज की कीमतें 60 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं. No one is talking about it. No media question is actually raising question and telling कि पीएम साहब ने तो ये कहा था. लोग शर्त लगा रहे थे कि सचिन की सेंचुरी लगेगी कि प्याज के दाम की सेंचुरी लगेगी. ये तो आपने महंगाई का हाल करके रखा है मेरे भाइयों. और मोदी जी से तो आप सवाल पूछ सकते हो, निर्मला जी से नहीं पूछ सकते क्योंकि उन्होंने पहले क्लियर कर दिया. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी. Now I'm repeating this second time. Again I'm telling you, it's a work of media, our news channels. क्योंकि इन्हीं न्यूज चैनल्स पर हमने सुना है डंका बज रहा है, हो गई बात, ये इसकी आखिरी रात, पता नहीं क्या 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 नहीं. आज हमारे 8 लोगों की जान खतरे में है. उनको फांसी की सजा सुना दी गई है कतर में. You all know that very well. There has been a shock for India from the Middle East. A court in Qatar has sentenced 8 former Indian Navy officers to death. Trust me, this is the time. जब न्यूज चैनल्स को ये सवाल पूछना चाहिए कि why we are not saving the lives of those 8 people. Because according to the news channels, हम विश्वगुरु ऑलरेडी बन चुके हैं. फिर भी इन सब चीजों को साइड रख के सोचने की बात है कि हम उन लोगों की जान कैसे बचाएं. It's a serious issue and media should raise the question and create some pressure on the government and they should think more and more of those lives. And as I told you guys, we are not supporting any political party from here and this information for everyone, every citizen of India and it's about every political party. थोड़ी सी भी इनकम हम जो कमाते हैं उसमें भी हमको बताना पड़ता है कि इसका हिसाब, उसका हिसाब, हर चीज का हिसाब. पर पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है
इसका हिसाब आप नहीं पूछ सकते। आई मीन दैट इज सो अनफेयर। आम आदमी को टैक्स देके अपनी कमाई बिल्कुल क्लीन करके रखनी है, सारी जानकारी देनी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देनी पड़ेगी। सिटीजंस डोंट हैव राइट टू नो सोर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड फंड्स, सेंट्रल टू सुप्रीम कोर्ट। Why media is so important in democracy? No, it's really important. Try to understand that. मैं फिर बोलता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना काम करेगी सत्ता में रहने के लिए, पर मीडिया को निर्भीक होकर सवाल पूछना चाहिए। सुनते हैं आप, कुछ कीजिए। कहीं आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा इस ट्रेन हादसे के बारे में जो आंध्र प्रदेश में हुआ है। In Andhra Pradesh has risen to 14. Over 50 people have been injured, and this comes after two passenger trains collided near Kota Valasa railway station. And our present government always like to dig out the past कि नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने किया था। मैं बताता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया था। उन्होंने रिजाइन कर दिया था जब ट्रेन हादसा हुआ था। That's why we have so much respect for him। मतलब कैसे बदला है, मोदी जी भी सोचेंगे तो यही कहेंगे। कैन डू जनरेशन। पहले ट्रेन हादसों पे नेता जिम्मेदारी लेके रिजाइन करते थे, अब रो दिया करते हैं। जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन। भी जो ट्रेन हादसा हुआ उनमें इनके ट्वीट आए, उन्होंने पहला ट्वीट ये किया कि मैंने मोदी जी को बता दिया। एंड ही आल्सो ट्वीटेड दैट हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू गिव द विक्टिम्स। सो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। Andhra Pradesh has risen to 14. Over 50 people have been injured, and this comes after two passenger trains collided. और ये सवाल पूछना मीडिया का काम है। क्या हम आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी आइडियोलॉजी का व्यक्ति हो, वो क्या ट्रेन में सफर नहीं करेगा कभी? क्या उसकी जान को खतरा नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। Then people raising questions, railway vacancies, रेलवे भर्ती के बारे में बहुत सारे सवाल है जो पूछने चाहिए थे। अब तो ऐसा हो गया कि अगर मंत्री हादसे की जगह पे जाते तो उसको बार बार हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि देखिए क्या बात है, वो खुद हादसे की जगह पे गए। उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल कड़ी धूप में आकर खड़े होकर उस भीषण हादसे वाली जगह पर। अच्छा। That's why media is the fourth pillar of the democracy and what this pillar is doing. And right now, World Cup cricket is going on and people are really happy in India because India is doing great. Touch wood, touch wood, touch wood. और हम होस्ट कर रहे हैं इवेंट को, हमको होस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए, हम सबको बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखी जानी चाहिए, जिन पर काम किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। Yes, I'm talking about ticket black marketing. People should not do that. मतलब 2.5 लाख रुपए की टिकट ब्लैक कर रहे हैं लोग। ये इस पर रोकथाम कहीं होनी चाहिए। वैसे क्रिकेट की बात चल रही है और हम काफी खुश है क्योंकि इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। टचवुड। एक पिक्चर वायरल हुआ, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एंड इफ यू लुक एट दिस पिक्चर इट विल रिमाइंड यू समथिंग। मोदी जी ने कभी कहा था एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। एग्जैक्टली, परिवारवाद इस पिक्चर में भर भर के। एंड व्हाट अ क्लिक, इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राउंड्स ऑफ वर्ल्ड कप। और इसमें किस किस नेताजी के बेटे हैं उन सबको याद करते हैं और फिर मोदी जी की वो बात भी याद कर लेते हैं क्योंकि मीडिया नहीं करता, इसलिए बोल रहा हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जय शाह, आप तो जानते हो, सन ऑफ मिस्टर अमित शाह, मिस्टर जतिन प्रसाद, सन ऑफ जितेंद्र प्रसाद, मिनिस्टर इन यूपी गवर्नमेंट, मिस्टर संदीप सिंह, ग्रैंड सन ऑफ कल्याण सिंह, मिनिस्टर इन यूपी गवर्नमेंट। एंड या मोदी जी ने कहा था परिवारवाद। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। एंड बिफोर आई गो, नारायण मूर्ति जी he said a really important thing. एक हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए देश के युवाओं को। मैं कहता हूं यहाँ देश में लोग 70 से भी ज्यादा काम कर ले। They want to work for 70 hours. But what work? No, seriously, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और मीडिया बात नहीं करता। अगर मीडिया आम आदमी के मुद्दे उठाएगा और देश के लिए बात करेगा तो देश और आगे बढ़ेगा। बस ये हमारी कोशिश होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।